आपला पण नाही जाणार ना. केलं
आवाज नहीं आ रहा। Start. Yes, bro. What happens sometimes is Kirtan goes loud. Oh, yesterday I think they were able to hear. That is very clear. Hare Krishna Prabhu. I think you can start. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Now I it's think clear. audio, your when you speak it will be okay. Kirtan was not audible. I think when you speak it should be okay. Supposed to say. Hare Krishna. Now you are able to hear. Hare Krishna, devotees. Yes. Fine. ठीक है, problem solved. Okay. Finally. So, Srimad Bhagavatam, first canto, 9th chapter, verse number 1. Sutta uvacha Buddha uvacha iti bhita prajadrohat sarva dharma vivitsaya
ततो विनाशम अनुप्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् इति बीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनाशम अनुप्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् synonyms. Sutta Uvac. प्रभु जी वो हिंदी का किधर है? You can read in English and class we can do in अच्छा छोटा सा synonyms. Sutta Uvac. Sutta Uvac. Sri Sutta Goswami said, Sri Sutta Goswami said, Iti, thus, Gita, being afraid of Prajadrohat, because of killing the subjects, Sarva, all, Dharma, acts of religion, Vivitsaya, for understanding, Tatha, thereafter, Vinasanam, the place where the fight was held, Pragat, event, Yatra, where Devavrata, Bhishmadev, Apadat, lay down for passing away. Translation. Sutta Goswami said, being afraid for having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Mother Yudhishthira went to the scene of the massacre. There, Bhishmadev was lying on a bed of arrows, about to pass away. Purported by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In this English, in this 9th chapter, as it is willed by Lord Shri Krishna, Bhishmadev will impart instructions to King Yudhishthira on the subject of occupational duties. Bhishmadev will also offer his last prayer to the Lord on the verge of passing away from this mortal world and thus become liberated from the bondage of further material engagements. Bhishmadev was endowed with the power of living his material body at will, and his lying down on the bed of arrows was his own choice. This passing away of the great warrior attracted the attention of all the contemporary elites, and all of them assembled there to show their feelings of love, respect, and affection for the great soul. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Vitam Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Jaya Mudire Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishike. Hari Om. Om Ajnanatimirobhasya Jnananjana Chakshurumilitanam Tasmai Shri Gurave Namo Om Vishnu Krishna Kristaya Shri Bhakti Smriti Namaste Saraswati Devi Gauravani Tuchayane Nirvishesha Shrilavani Pashchata Deshtani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radhara Shivasati Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस सनातन धर्म गुरु को एंड आल्सो इनडायरेक्टली जो ग्रेट है वो सारे भक्तगणों को जाता है जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया और मुझ जैसे आदमी को दिया जिसके पास कोई क्षमता नहीं है लेकिन जो हमारे आचार्य गण ने जो अमृत छोड़ के गए पीछे तो वो मैं काफी उसके लिए मैं एंथुसियास्टिक हूं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मेरा कोई एक्चुअली मेरे में कोई क्षमता नहीं है लेकिन प्रभु जी की कृपा से मुझे अवसर मिल रहा है। सो थैंक यू ऑल द डिवोटीज सो मच। तो भीष्म पितामह जो है वो भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य सिद्ध भक्त है। एक्चुअली ऐसा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनको जो मटेरियल एंगेजमेंट है उससे फ्री होने के लिए अल्टीमेटली भगवान के दर्शन हुए और फिर भगवान के धाम में चले गए। लेकिन एक्चुअली
भीष्म पितामह जो है वो भगवान के नित्य सिद्ध वैष्णव है और उनके धाम से आए। तो हमारे आचार्यगण ये बताते हैं कि दो प्रकार के यहाँ पे दो चीजें संभव है कि एक तो जीव है, अभी एक तरीके से नित्य सिद्ध भी है लेकिन उनको कर्म भी है, क्योंकि पूर्व जन्म में वो वसु थे, राइट, जो वसु के लीडर थे, जो अष्ट वसु थे उसके लीडर थे वो, तो उनके कर्म की वजह से उनको भीष्म पिता बन के आना पड़ा। तो इसको हम किस तरीके से सुलझा सकते हैं? तो हमारे आचार्यगण श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं बृहद भागवत अमृत में कि भगवान के धाम से उनके नित्य पार्षद भीष्मदेव है, वो इस पृथ्वी पे आते हैं, और जो जीव वसु है वो आते हैं, और जब भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के समय पे आते हैं तो ये जो वसु जो है वो उनके शरीर में समा जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से भगवान की लीला इस संसार में प्रकट होती है। तो एक्चुअली में बहुत जरूरी है कि हम श्रवण करें ठीक से, क्योंकि ये सब तभी हम समझ सकते हैं जब हम अपने गुरु परंपरा के आंखों से देख सके चीजें। अदरवाइज हमको नहीं समझ में आएगा, तो हमको लगेगा कि साधारण व्यक्ति थे, उनको करना था और उन्होंने शरीर बदले, और लेकिन एक तरीके से ऐसा सोचना अपराध है, क्योंकि भगवान के जो पार्षद नित्य पार्षद है वो हमेशा कर्म से परे है। जैसे पांडव जो थे वो भी उनको कोई कर्म नहीं था, ठीक है, पांडव को कोई कर्म नहीं था। तो अभी प्रश्न ये आता है कि पांडव क्यों इतने परेशान हुए थे? क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज का जो शाप दिया था उन्होंने, उनको जो शाप मिला था वो भी भगवान का अरेंजमेंट था, वो भी भगवान की इच्छा थी। परीक्षित महाराज को कभी भी गुण छू नहीं सकते हैं, वो सत्व रजो और तमोगुण से परे है। क्योंकि आप देखिए एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट है, परीक्षित महाराज को उनको इतनी पानी की प्यास लगी थी कि उनको गुस्सा आया और उन्होंने जो श्रृंगी ऋषि है उनको सांप का हार पहना दिया। लेकिन वही सेम परीक्षित जब भागवत सुनने के लिए इतने उत्सुक थे तो 7 दिन उन्होंने निर्जल उपवास किया बिना पानी पिए। तब कहाँ पे था उनका जो उनकी तीव्रता थी, जो पानी की प्यास बुझाने की, वो किधर थी? तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारे जितने भी भगवान के भक्त है जो गोलोक से आए हैं तो वो सब नित्य पार्षद है भगवान के। तो उसी प्रकार से तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों के द्वारा बहुत कुछ समझाते हैं हमको। इसके लिए प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि भगवान का तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व और भक्तों का तत्व, वैष्णव तत्व, ये सब प्रभुपाद जी ने अपने किताबों में बहुत अच्छी तरीके से दिया है। तो प्रभुपाद जी ने सारा जितने भी आचार्य हमारे हैं उनका जो सार है उनको वो उन्होंने अपने पुस्तक में दे दिया है। तो भगवान की लीला को समझना इतना आसान नहीं है। तो अभी जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया भीष्म पितामह का, तो उसी प्रकार से एग्जांपल है नंद महाराज और यशोदा मैया का। तो ऐसा बताया गया है कि पिछले जन्म में वो लोग द्रोण धरा थे, फिर कृष्णी और सुतप थे, और अदिति और कश्यप थे, राइट। तो क्या वो हमारा कर्म के हिसाब से उनका जो कर्म करते हैं और फिर दूसरा शरीर पाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, वो भी नित्य पार्षद है, क्योंकि भागवतम में ऐसा भी बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है वो सनातन रूप से नंद और यशोदा के पुत्र है। एक और चीज है कि हमें ये पता है कि भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ में से जन्म लिया मथुरा में, और वो यशोदा ने उनको, जैसे हम बोलते हैं कि फॉस्टर चाइल्ड, मतलब यशोदा ने उनका पालन किया, राइट। लेकिन ये भी बात सही नहीं है। एक्चुअली भगवान कृष्ण जो है उन्होंने साइमल्टेनियसली यशोदा और देवकी से जन्म लिया है। तो ये हमारे आचार्य इसका सीक्रेट रिवील करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जो है वो कमेंट्री है लघु भगवत में रूप गोस्वामी ने जो लिखा है उसमें ये चीज बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन क्यों नहीं किया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो सीक्रेट रहे। और भगवान क्यों चाहते थे सीक्रेट रहे? क्योंकि वो समय पे भगवान ये नहीं चाहते थे कि अगर कंस को पता चल गया कि मैंने 2 जगह पे जन्म लिया है, यशोदा और देवकी के वहां पे, तो कंस क्या करते थे, दोनों माता पिताओं को परेशान करते थे, उनको दोनों को कष्ट पहुंचाते थे। तो इसके भगवान नहीं चाहते थे कि ये सीक्रेट रिवील हो, और ये सीक्रेट ना रिवील हो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को भी हिंट दे दिया उसका। तो ऐसा बलदेव जी अपने कमेंट्री में बताते हैं लघु भगवत अमृत के। तो जिस प्रकार से भगवान अपने आप को एक्सपांड करते हैं, राइट, जब भगवान का आविर्भाव होता है और वो अपने आप को अलग अलग
रूप में एक्सपांशन करते हैं। जैसे ऐसा बोलते हैं कि वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, जैसे एक कदम वृंदावन के बाहर भगवान नहीं लेते, राइट। तो कौन जाता है फिर मथुरा और द्वारका? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि वासुदेव जाते हैं। तो अक्रूर घाट जो है वो बॉर्डर है मथुरा और वृंदावन का, और भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चतुर्व्यूह है भगवान का, वो मथुरा और द्वारका में अपना लीला करते हैं। तो भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं। तो रूप गोस्वामी एक बात पूछते हैं यहाँ पे कि अगर भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते तो क्या जो वीर भाव था ब्रजवासियों का, क्या वो एक झूठ था, क्या वो सच नहीं था? तो बोलते हैं कि नहीं, भगवान वीर भाव का भी आस्वादन कराते उनको। तो किस तरीके से? तो ये सब हमको जानने मिलता है, उसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि भगवान की लीला जो है बहुत गुह्यम है, और वो गुह्यम रहस्य जो है सिर्फ हमारे आचार्य बता सकते हैं। और आचार्य जो जिस तरह से बताते हैं वो कुछ अपने सेंटिमेंट से नहीं बताते हैं, वो शास्त्रों को प्रमाण बताते हैं। बहुत सारे शास्त्रों का, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, फिर उपनिषद है, सबको कोट करते हैं और वो एस्टैब्लिश करते हैं कि ये लीला इस तरीके से हुई है। ऐसा नहीं है कि हवे में बोल दिया उन्होंने। अच्छा, कोई भक्त बोल सकता है कि अरे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, वो तो रूप मंजरी है, लवंग मंजरी है, उनको तो दिखता है भगवान की लीला, इसके लिए वो तो बोल सकते हैं कुछ भी उनके रियलाइजेशन से। नहीं, वो भी शास्त्र का प्रमाण देते हैं और एस्टैब्लिश करते हैं। क्योंकि देखिए, आप दुनिया में है ना, किसी को अगर भगवान की लीला के बारे में बताओगे तो किसी को यकीन नहीं होगा जब तक आप शास्त्र प्रमाण नहीं होगे, क्योंकि शास्त्र जो है वो सारे जितने भी प्रमाण है उसमें से सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है। ठीक है, तो ऐसा है कि नंद महाराज और यशोदा मैया है, वो भी भगवान के द्वितीय पार्षद है, और द्रोणधरा है वो उनके अंश है। अभी देखिए, दो चीजों की यहाँ पे संभावना है। एक ये है कि जब नंद और यशोदा भगवान के धाम से आते हैं, गोलोक से यहाँ पे गोमो वृंदावन में, तभी द्रोणधरा जो है वो उनके अंश है। तो अंश का मतलब क्या है कि उनका एक्सपांशन है, अलग जीव नहीं है। द्रोणधरा नंद यशोदा के अंश है। मतलब जब द्रोणधरा और नंद महाराज जब यशोदा मैया आते हैं तो द्रोण और धरा उनके बॉडी में समा जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का अंश है, वो अंशी है, ये अंश है। ये एक संभावना है। दूसरा ये है कि द्रोणधरा अलग जीव हो सकते हैं और नंद और यशोदा अलग जीव हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है भगवान की लीला में, दोनों जब आते हैं तब दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, और उसके बाद जब भगवान की लीला समाप्त होती है तो ये दोनों जीव शरीर में से निकल के अपने अपने स्थानों पे, अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। जैसे अगर उन्होंने शुद्ध भक्ति की है तो भगवान के धाम में चले जाते हैं। और अगर ये उदाहरण जनरली देवी देवताओं का है कि हम जब बोलते हैं कि भगवान के अंश है, इंद्र, वायु, चंद्र, जो भी है सब देवी देवता है, तो अंश मतलब वो जीव है, वो अलग जीव है। वो भगवान के अंश मतलब उस तरीके से नहीं है, एक्सपांशन नहीं है, लेकिन अलग जीव है। तो जब भगवान आते हैं, जिस प्रकार से उदाहरण दिया व्यास देव जी का, तो ऐसा महाभारत आदि पर्व में कहा गया है कि अपर आत्मा करके एक जीव है जो भगवान द्वैपायन जो है वो भगवान विष्णु तत्व है। तो वो विष्णु है और ये जीव है। तो जब उनका समय हो जाता है कृष्ण भगवान के पहले व्यासदेव जी, तब विष्णु और जीव दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं जब उनकी लीला खत्म होती है। तो ये दूसरी संभावना है। तो उस प्रकार से भगवान का लीला होता है। और एक जीव जो है वो अपने आप को बहुत सारे अलग अलग जगत में एक्सपांड करते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन का उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद जी ने एक लेटर में, कि अर्जुन जो है वो एक आत्मा है, लेकिन इतने सारे ब्रह्मांड में अर्जुन अपने आप को विस्तारित करते हैं सब जगह पे भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर ऐसा भी कहा गया है कि हमको लगता है कि भगवान की लीला समाप्त हो जाती है फाइनल एनिलिएशन के टाइम पे, ब्रह्मा जी के मरने के समय पे। लेकिन श्रील विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि एक्चुअली में भगवान की लीला नित्य है, इस जगत में भी नित्य है। किस तरीके से वो बताते हैं कि अप्रकट के रूप में है। मतलब वो बताते हैं कि भगवान जो है वो इल्यूजरी यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं। जब पूरा डिसोल्यूशन हो जाता है, महाविष्णु में सारे ब्रह्मांड समा जाते हैं, तो भगवान उस समय पे इल्यूजरी यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं और भगवान की लीला इस जगत में चलती है। सिर्फ गोलोक धाम में नहीं, बट इस जगत में भी भगवान की लीला। और सिर्फ जब तक सृष्टि है तब तक नहीं, लेकिन सृष्टि के अदृश्य होने के बाद भी। तो ये सारे चीजें हमारे आचार्य बताते हैं शास्त्र को कोट करके।
तो अभी हम आते हैं भगवान की लीला के बारे में समझने के लिए कि किस तरीके से प्रकट अप्रकट लीला है भगवान की। तो पहले हम समझ सकते हैं कि प्रकट और अप्रकट क्या है। तो प्रकट लीला वो है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो साधक जो है वो अपनी आंखों से देख सकता है, और जो नित्य सिद्ध है वो तो भगवान को देखते ही है, अप्रकट रूप में भी देखते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान उन्हीं में वास करते हैं एक तरीके से। तो प्रकट लीला जैसे फॉर उदाहरण के तौर पे, अगर मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं धाम जा रहा हूं, तो मैं धाम का एक स्वरूप देख रहा हूं, अपनी आंखों से मैं एक धाम का स्वरूप देख रहा हूं, तो उसको बोलते हैं दृश्यमान धाम। जो भगवान जब कृष्ण यहाँ पे थे ये भौतिक जगत में भौमो वृंदावन में, और जिस प्रकार से धाम ने मैनिफेस्ट किया था, तो उसको भौमो वृंदावन बोलते हैं, जो हम नहीं देख सकते क्योंकि पर्दा लग गया है हमारा। हम जब तक भाव और प्रेम के स्तर पे नहीं आएंगे ना, तब तक हम भगवान का धाम नहीं देख सकते ठीक से। तो अगर भगवान का धाम देखना है तो हमको भगवान के धाम को सेवा के भाव से हमको जाना है, और शुद्ध भगवान के लिए शुद्ध प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। तो भाव और प्रेम के स्तर पे हमको भगवान का धाम एज इट इज दिखेगा। तो अभी आप जाते हो तो आपको गंदा कचरा नाला वो सब दिखता है, राइट? तो ये इसको बोलते हैं दृश्यमान धाम। लेकिन कोई कोई भगवान की जो असली चीजें है वो आज भी आप अपने आंखों के द्वारा देख सकते हो। जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत है, यमुना जी है, तो वो असली है, ऐसा नहीं है कि नकली है। भगवान ने कवर किया है उसको, जैसे गोवर्धन एक्चुअली बहुत विशाल है, राइट? लेकिन हम देख सकते हैं कि अरे बहुत छोटे हो गए, उनका हाइट छोटा हो गया। वो तो हमको पता है कि उनको शाप मिल गया था, तो कलयुग में उनका हाइट बहुत कम हो गया है। लेकिन जो गोवर्धन हम देखते हैं वो एक प्रोटोटाइप है, असली गोवर्धन जो हम देख सकते हैं। तो जब आप भाव प्रेम के स्तर पे पहुंचेंगे तो ये सब हमको चीज एज इट इज दिखेगी जो गोलोक वृंदावन है। तो भगवान हमारे सामने प्रकट चीजें करते हैं, उसका मतलब है कि साधक जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अप्रकट का मतलब ये है जो नित्य सिद्ध देख सकते हैं, जिसको प्रेम का स्तर मिल गया है, सिर्फ वही लोग देख सकते हैं भगवान का असली स्वरूप और असली धाम। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि प्रकट और अप्रकट क्या है। तो अभी ऐसा है कि रूप, मैं अभी ये पॉइंट पे आता हूँ कि रूप गोस्वामी ने बोला है कि वीर भाव का आस्वादन करने के लिए भगवान तो उनको तो जाना है। एक तरीके से वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। दूसरी तरीके से रूप गोस्वामी बता रहे कि नहीं, वृंदावन तो छोड़ के जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि तभी वीर भाव का आस्वादन होगा। तो वो बताते हैं कि क्या होता है जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं तो अदृश्य हो जाते हैं। उनका प्रकट जो फॉर्म है, प्रकट मतलब जैसे अगर मैं साधक हूं और मैंने कृष्ण की लीला में जन्म लिया है, तो मैं कृष्ण को नहीं देख सकता हूँ क्योंकि वो चले गए मथुरा। अगर मुझे कृष्ण को देखना है तो मुझे मथुरा द्वारका जाना है, राइट? बट मैं वृंदावन में भगवान को नहीं देख सकता हूँ। लेकिन जो वनवासी है, जो लोग भगवान के नित्य पार्षद है, जिन्होंने प्रेम का स्तर प्राप्त किया है, वो लोग सब भगवान को देख सकते हैं फिर भी। तो इसमें ऐसा है कि भगवान चले जाते हैं तो 3 महीने के लिए ब्रजवासियों को वीर का भाव आस्वादन कराते हैं। तो वो 3 महीने में एक्चुअली एक तरीके से हमको ये भी एस्टैब्लिश करना है कि भगवान कभी छोड़ के नहीं आते। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये 3 महीने में भगवान उनके विस्मृति के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अब विस्मृति जो है वो एकदम सेम नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर है। जो भगवान का साक्षात उनका जो प्रेजेंस है और विस्मृति जो होता है उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो वो बताते हैं कि 3 महीने के लिए भगवान उनको विस्मृति देते हैं, और उसके बाद 3 महीने के बाद भगवान अप्रकट रूप में उनके पास डायरेक्टली चले जाते हैं, सडनली उनके पास पहुंच जाते हैं। तो ये कब होता है? ये जब होता है जब उद्धव जी वृंदावन जाते हैं, उसके पहले भगवान उनका अप्रकट रूप वहां पे स्थापित कर लेते हैं। और प्रमाण क्या है इसका? तो प्रमाण यह है श्रीमद् भागवतम में जब उद्धव भगवान कृष्ण को का संदेश लेके जाते हैं ब्रज में, तो आप देखेंगे कि एक श्लोक है भागवतम में जिसमें बहुत ब्लिसफुल वर्णन किया है ब्रजवासियों का। सब लोग बहुत आनंद में है, खुश है, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो क्या ये संभव है? देखिए, कृष्ण के विरह के बाद कोई भी ब्रजवासी जो है वो आनंद में नहीं हो सकता, हमेशा दुखी होगा। जैसे बहुत सारे राधा रानी और गोपियों के ब्रजवासियों के भाव प्रकट किए हैं कि किस तरीके से उनका शरीर जो है वो पूरा एकदम
बोलते हैं कि एकदम साइज में बहुत कम हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, सूख जाते हैं वो लोग। तो उस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग भाव प्रकट करते हैं वो लोग, तो वो लोग आनंद में नहीं होते। तो जब उद्धव जब आते हैं वृंदावन में, तभी वो क्या देखते हैं कि ब्रजवासी बहुत खुश है, और उद्धव उससे बिविल्डर नहीं होते देख के। तो उसमें रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि जब उद्धव चाहते हैं और वो जब ये दृश्य देखते हैं, उसके पहले कृष्ण ऑलरेडी पहुंच जाते हैं वृंदावन में अप्रकट रूप में। और वो समय पे भगवान क्या करते हैं, दो अलग अलग लीला, दो अलग अलग व्रज, दो अलग अलग ब्रजवासियों को प्रकट कर लेते हैं। तो उद्धव जो देखते हैं वो एक ब्रजवासियों को देखते हैं जो लोग भगवान के संगति में है, और वो अप्रकट लीला है जो भागवतम में डिस्क्राइब किया है। वो अप्रकट लीला में भगवान वहां पे मौजूद होते हैं, संग देते हैं उनको, संभोग, विप्रलम और संभोग। तो संभोग में भगवान होते हैं, वो भागवतम में डिस्क्रिप्शन लिया है। फिर जब उद्धव जाते हैं और नंद महाराज यशोदा मैया को मिलते हैं उनके घर में, तो बहुत दुखी होते हैं। तो वो दूसरे जो उनका जो विस्तार है उसको देखते हैं, वो जो प्रकट जो सारे ब्रजवासी है और जो भगवान का स्वरूप था। तो भगवान तो वो स्वरूप में नहीं है, तो सारे जो है वो वीर भाव में है। तो प्रकट दृश्य वो देखते हैं, तो उस दृश्य में सारे ब्रजवासी वीर भाव में है। ठीक है। फिर बाद में वो गोपियों को मिलता है, और आपको पता है कि उद्धव गीता और फिर वो जो राधा रानी का जो बम्बल के साथ जो संवाद होता है, गोपी गीत, वो सब। तो ये आप देखेंगे कि ये सब वीर भाव में है। तो ये अलग अलग भगवान मैनिफेस्टेशन करते हैं लीलाओं को, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने प्रभुपाद के बुक्स नहीं पढ़े हैं। तो अगर भगवान की लीला को अगर एकदम गहराई से जानना है, जन्म कर्म च मे वेद्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वाद्यम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान का तत्व का क्या रहस्य, ये तत्व है उनका, ये सारा तत्व है। तो ऐसा कृष्ण भगवान बोलते हैं कि गीता में कि जब भगवान का तत्व समझेगा तब हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। अगर आपने सिर्फ समझ लिया कि भगवान कृष्ण है, सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं उनका अंश हूं, वो ठीक है, वो एक तत्व भी है, लेकिन भगवान के बहुत सारे रहस्यमय तत्व है। तो ये रहस्यमय तत्व उनकी लीला का तत्व है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो अलग अलग मैनिफेस्ट है। तो बाद में फिर क्या होता है, उद्धव के आने के पहले भगवान अपने आप को अप्रकट रूप में ब्रज में चले जाते हैं। उसके बाद 3 महीने से लेके अभी ये प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान कृष्ण वापस वृंदावन आते हैं कि नहीं आते। उन्होंने बहुत सारे वचन दिए अलग अलग भक्तों को, लेकिन हम सुनते हैं कि भगवान कभी वापस वृंदावन गए नहीं और सबको भगवान ने बहुत वीर भाव में डाल दिया था। तो क्या ये सच है? क्या भगवान कभी नहीं जाते वृंदावन वापस? तो इसका रहस्य भी आचार्य हमारे बताते कि वैसे तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 3 महीने के बाद तो भगवान जाते ही है, राइट, लेकिन प्रकट रूप में भी जाते हैं। देखिए भगवान ने 3 भक्तों को वचन दिया था कि मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी। एक जो गोपियां थी, जब वो जा रहे थे तभी उन्होंने गोपियों को वचन दिया था। उसके बाद उन्होंने नंद महाराज को वचन दिया था, जब वो मथुरा में गए थे कंस का वध करने, तभी नंद महाराज को उन्होंने वचन दिया मैं जल्दी आ जाऊंगा वापस। और तीसरा उन्होंने उद्धव के द्वारा वचन दिलाया था ब्रजवासियों को कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा वापस। तो अप्रकट रूप में भगवान ने ये वचन को तो पूरा किया, लेकिन अब उनको प्रकट रूप में ये वचन को भी पूरा करना है। तो भगवान ने क्या किया, जब दंतवक्र को मारा, दंतवक्र को अगर आपको देखिए, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक्र, ये 3 जय विजय के अवतार है, बराबर, जय विजय का स्वरूप है। लेकिन वो एक ही कल्प में है, बाकी के कल्प में ये अलग जीव है, उनको कर्म लगता है, ये जय विजय नहीं होते, सिर्फ एक ही कल्प में जय विजय आते हैं और ये अलग अलग स्वरूप लेते हैं। ठीक है। तो शिशुपाल का उन्होंने शिशुपाल का वध किया और उनको दंतवक्र का वध करना था। तो दंतवक्र का वध करने के लिए भगवान ने ऐसी योजना रची कि दंतवक्र को उन्होंने मथुरा के पास में बुलाया, मथुरा के बॉर्डर में,
और वहां पे उनका वध किया। क्यों? क्योंकि उनको व्रज में वापस जाना था। तो पद्म पुराण में तो हमारे रूप गोस्वामी है और जीव गोस्वामी ये शास्त्र प्रमाण देते पद्म पुराण से कि भगवान वापस गए थे व्रज में, अब वो प्रकट रूप में गए। अब जो बीच का जो समय था 3 महीने से लेके दंत वक्र को मारने के बाद भगवान जब प्रवेश करते हैं व्रज में, तो उसके बीच का जो समय है भगवान पूरी तरीके से अप्रकट रूप में प्रस्तुत थे व्रज में और उनके व्रजवासियों के साथ लीला कर रहे थे। लेकिन दंत वक्रों को मारने के बाद क्या हुआ, जब भगवान ने एंट्री मारी व्रज में, तो अप्रकट और प्रकट जो है वो एक साथ समा गए, एक स्वरूप में आ गए। क्योंकि अब अप्रकट की जरूरत नहीं है, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। तो जो अप्रकट था वो भगवान के प्रकट फॉर्म में एक साथ समा गया। हरे कृष्ण। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मतलब मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ कि क्यों प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने चाहिए, और उससे आपको काफी रुचि आएगा। सिर्फ आचार्य के बुक्स पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल आपके पूरे भक्ति में उसका प्रभाव पड़ेगा। जगह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं यहाँ पे, तो उनका भी तत्व का रहस्य है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो जगन्नाथ जी को नहीं देख रहे थे, वो श्याम सुंदर कृष्ण को देख रहे थे मुरली के साथ। और जब भी श्याम सुंदर जो है वो अदृश्य हो जाते थे तो महाप्रभु वीर भाव में आ जाते थे वापस। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय है उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से इतना रुचि नहीं है। क्यों रुचि है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वीर भाव का आस्वादन किया है। जगन्नाथ का जो स्वरूप है, अब ये प्रश्न ये उठता है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे? तो बाहर का कारण यह है कि क्योंकि वो सच्ची माता ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे रह जाइए, आसपास में तो आना जाना रहेगा, आपका न्यूज आता जाएगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा इजी हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अंतरंग कारण है उसका सबसे बड़ा, और वो क्या है? क्यों चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, क्यों गोपाल जी को नहीं? नाथद्वारा के श्रीनाथ जी गोपाल जो है उनको क्यों नहीं, उनके पास क्यों नहीं? द्वारका में भगवान क्यों नहीं रहे? सिर्फ जगन्नाथपुरी में क्यों रहे भगवान? क्यों? क्योंकि ये जो जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो कृष्ण का महाभाव प्रकाश स्वरूप है। ये स्वरूप जो है भगवान को वृंदावन ब्रज का सीधा याद कराता है। क्योंकि ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं तो उसके पीछे आपको स्टोरी तो पता ही है जगन्नाथ की, राइट? तो ललित माधव में श्री रूप गोस्वामी एक बहुत ब्यूटीफुल पास टाइम भगवान का नरेट करते हैं। किस प्रकार से ये गौर गोविंद महाराज ने बहुत बार अपने क्लास में इसको शेयर किया है कि किस तरीके से नव वृंदावन करके द्वारका के पास नव वृंदावन बनाते हैं भगवान कृष्ण। क्योंकि हमेशा वृंदावन ब्रजवासियों के बारे में सोचते हैं, उनको रह ही नहीं आता है ब्रजवासियों के बारे में सोचने के बिना। तो नव वृंदावन का निर्माण करते हैं वो द्वारका के पास में। वो नव वृंदावन जो है वो पूरा वृंदावन के समान होता है, लेकिन उससे अलग भी है। तो सारे गोप गोपी या जो जितने भी ब्रजवासी उनका रेप्लिकेशन करते हैं वो नव वृंदावन में, बट उनको संतुष्टता फिर भी नहीं मिलती है। तो बृहद भागवत अमृत में ऐसा बताया सनातन गोस्वामी ने कि किस तरीके से कृष्ण जो है वो हमेशा उत्सुक रहते हैं व्रत जाने के लिए। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं वर्णन करूंगा जो लीला है, लेकिन नारद मुनि, बलराम जी, फिर सुभद्रा जी, ये सभी भगवान को उनको पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान नहीं सुनते हैं, उनको जाना ही होता है। तो फिर बाद में पहले तो बलराम जी उद्धव भी होते हैं वो समय पे, तो फिर नारद मुनि होते हैं। तो नारद मुनि उद्धव जी को बोलते हैं कि आप जाइए वृंदावन में और बोलिए भगवान कृष्ण जल्दी आ रहे हैं वहां पे। तो उद्धव जी बोलते हैं मैं तो ऑलरेडी गया था, मेरा कुछ काम हुआ नहीं, भगवान ने वचन दिया लेकिन फिर भी नहीं आया। ठीक है, फिर बाद में बलराम जी को बोलते हैं, तो बलराम जी बोलते हैं मैं भी गया था लेकिन मेरा भी भगवान कृष्ण ने सुना नहीं। मैंने भी उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए वृंदावन में, आप ब्रजवासी सब आपके वीरा में सूख गए, तो वो भी उन्होंने स्वीकार, मतलब तभी भगवान वापस नहीं गए। फिर बाद में सुभद्रा माई ने बोला कि चलो इस समय मैं जाती हूँ, तो मैं अगर जाऊंगी तो एज अ लेडी तो जो ब्रजवासी है वो समझ पाएंगे मुझे। तो इसके लिए फिर सुभद्रा माई रेडी हो जाती है और उन्होंने बोला मैं जाती हूँ। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसका अंतरंग कारण क्या है, क्यों बलराम जी का रथ पहले जाता है, बाद में सुभद्रा और बाद में कृष्ण एंड में? क्योंकि सुभद्रा जी पहले बोलते हैं कि मैं जाऊंगी, तो बलराम जी बोलते हैं कि एक काम करते हैं, तुम लड़की हो, तुम गर्ल हो, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा,
तो मुझे तुम्हारे आगे जाने दो ताकि तुम्हें प्रोटेक्शन मिले। तो बलराम जी का रथ पहले निकलता है। तो हम देखते हैं रथ यात्रा में भी ऐसे होता है, बलराम जी का पहले निकलता है, उसके बाद सुभद्रा मैया जाती है, और एंड में बाद में क्या होता है, कृष्णा एक्चुअली फेंट होते हैं, वो समय पे वो फेंटेड होते हैं। तो नारद जी और ये सब संकीर्तन करते हैं, उद्धव जी और नारद जी उधर संकीर्तन करते हैं, तो भगवान उठते हैं और उन लोग बताते हैं कि देखिए अभी ये वृंदावन के लिए निकल गया, आप भी जाइए। तो उनका वो रथ वो सब तैयार करते हैं। तो वो जब सुनते हैं वृंदावन के बारे में तो उनसे रहा नहीं जाता है और वो हिलने डुलने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को जगन्नाथपुरी में जब मंदिर से काट में लेके जाते हैं तो पहाड़ी राइट ऐसा बोलते हैं। तो भगवान ऐसा डोल बोल के जाते हैं ऐसा। तो भगवान इसके वजह से जाते हैं क्योंकि वो एकदम भाव विभोर होके जाते हैं वृंदावन वासियों को मिलने के लिए। तो फिर बाद में वहां पे कृष्ण भी जाते हैं। उसके बाद सभी तीनों जो है वो वृंदावन पहुंच जाते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, ब्रजवासियों को देख के बलदेव जी और सुभद्रा मैया वो भाव योग में आ जाते हैं और उनका जो स्वरूप है एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है। और उसके बाद एंड में कृष्णा की दृष्टि राधा रानी के ऊपर पड़ती है और राधा रानी का जो उनके जो हवा बहती है तो वो राधा रानी को छू के भगवान कृष्ण को छूती है। तो कृष्ण भगवान नहीं ऐसा नहीं, उल्टा होता है। कृष्ण को जो हवा छूती है और राधा रानी को छूती है, राधा रानी बेहोश हो जाती है और फिर कृष्णा जो है वो राधा रानी को देख के वो भी भाव विभोर हो जाता है और फिर उनका स्वरूप जो है वो ऐसे इस तरीके से हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये मतलब आपको लीला बता रहा हूँ कि ये रहस्य है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो स्वरूप है उसका मेन। तो ये भगवान का स्पेशल स्वरूप है जो वृंदावन स्वरूप भी है एक तरीके से। अगर आप देखेंगे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोलोक जो है उसमें सबसे सेंटर में है हमारा वृंदावन, उसके बाहर आता है मथुरा और उसके बाद आता है द्वारका। अब जगन्नाथपुरी का लोकेशन कहां पे? तो जगन्नाथपुरी सनातन गोस्वामी बताते हैं कि मथुरा और द्वारका के बीच में है। क्यों द्वारका में नहीं है? क्योंकि द्वारका से उनका जो स्वरूप है ऐश्वर्य महेश थोड़ा कम है, थोड़ा माधुर्य उसमें है क्योंकि भगवान का महाभाव प्रकाश है कृष्ण बलराम सुभद्रा जी का, जो व्रज में जाने के लिए आतुर है हमेशा। इसके लिए हम लोग जगन्नाथ बलदेव जी का सुभद्रा जी को हम लोग उस भाव से देखना है, हमको चैतन्य महाप्रभु के भाव से देखना है। सिर्फ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं है, सिर्फ जगन्नाथ नहीं है हमारे लिए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स नहीं है। नो, वी हैव नथिंग टू डू विद द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बिकॉज वी आर नॉट वैकुंठ वासीस, वी आर गोलोक वासीस। मतलब आई एम जस्ट लाइक शेयरिंग व्हाट एवर आचार्य से। तो हमारा जो चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको पाठ दिया है वो राधा कृष्ण का सेवा का पाठ है। तो उसके बदले हमको चैतन्य महाप्रभु जब हम रथ भी खींचते हैं तो क्या भाव से खींचना चाहिए रथ? एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु का ये भाव था। और हमारे को ये सोचना है कि हम किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु को आशीष कर रहे हैं, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ, उस तरीके दासानुदास बन के चैतन्य महाप्रभु को हम आशीष कर रहे हैं सारे ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वृंदावन लेके जाने के लिए, ये भाव के साथ। अब प्रश्न ये है कि जब भगवान वापस गुंडीचा से श्री मंदिर जाते हैं तो क्या हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन गौर लीला में हम क्या देखते हैं? गौर लीला में गौर भक्त जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो किस तरह पार्टिसिपेट किया उन्होंने? वो रथ के आगे नहीं थे, वो रथ के पीछे थे और वो क्या बोल रहे थे? मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वो धक्का नहीं मार रहे थे रथ को, जाओ जाओ जाओ। तो ये भावना के साथ हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो आप समझ गए? तो रथ के पीछे थे सब, गौर भक्त जो है वो सब रथ के पीछे थे। तो ये सब रहस्य जो हम तभी तो हमको समझ में आएगा जब हम प्रभुपाद की किताब पढ़े और धीरे 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 करके आचार्य का हमारे को सब जितना भी उन्होंने हमारे लिए अमृत छोड़ा है तो वो हमको जानने मिलेगा, राइट? तो ये फिर इसी ना अभी जगन्नाथ महाप्रसाद क्यों से, बहुत सारे महाप्रसाद है, तो जगन्नाथ का महाप्रसाद क्यों इतना फेमस है? क्योंकि अगेन जब राधा रानी और कृष्ण का जब लीला होता था ब्रज में तो जो जगन्नाथ जो प्रसाद है वो बेसिकली श्याम सुंदर कृष्ण का प्रसाद, जो जैसे उनको बीटल नट ऑफर करते थे गोपियां, राइट? उनकी लीला के बाद तो बीटल नट को हम क्या बोलते हैं? पान, राइट? तो वो पान ऑफर करते तो उनको वो जब उनको चबाते थे तो वो उनका रेमनेंट्स देते थे गोपियों को, ब्रजवासियों को। तो उसके वजह से जगन्नाथ का महाप्रसाद सबसे फेमस है क्योंकि बहुत पावरफुल है वो, क्योंकि डायरेक्टली श्याम सुंदर कृष्ण ने अपने मुख में लिया है उसको। तो ये चैतन्य महाप्रभु गौड़िया वैष्णव ऐसा इस तरीके से देखते हैं उसको। तो ये सारे रहस्य है।
तो हर चीज में आपको कुछ ना कुछ कारण मिलेंगे। भक्ति जो है वो सब कुछ साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि अरे ऐसे ये लोग बोलते हैं कि अरे जगन्नाथ को वर्शिप करो, अरे ये इसको करो, इसको नहीं, हर चीज में कारण है, ठीक है। सो तो ये भगवान की जो लीला है वो इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन होता है उसका। और सिमिलरली अभी देखिए जैसे कृष्ण भगवान जो है, तो एक प्रश्न ये आता है कि भगवान कृष्ण जो है वही सबसे श्रेष्ठ क्यों है? राम भगवान भी है, नरसिम्हा भी है। तो आचार्य हमारे ये बताते हैं कि एक चीज जो भगवान कृष्ण जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। और वो कौन सी चीज है? जैसे हमको पता है कि भगवान कृष्ण में 64 गुण है, राइट? 4 गुण ज्यादा है विष्णु भगवान से। वो 4 गुण कौन से ज्यादा है? प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, 4 हो गए। लेकिन ये सब लीला के रिलेटेड है। अब ऐसी एक यूनिक क्वालिटी है भगवान कृष्ण में जो ना राम भगवान, ना नरसिम्हा भगवान, ना कोई और दूसरे अवतार में। वो क्या है? भगवान कृष्ण कोई भी असुर का वध करते हैं तो वो असुर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो आचार्य हमारे बताते हैं कि गति को प्राप्त करते हैं। और गति जो है वो विष्णु भी दे सकते हैं, विष्णु के अवतार भी दे सकते हैं। लेकिन गति जो है उसका अलग अलग मीनिंग है। तो गति का मतलब है कि आपको हेवनली प्लैनेट भी मिल सकता है, आपको बहुत सारा धन मिल सकता है, आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, धाम की। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? वो मोक्ष देते हैं जो भगवान और किसी विष्णु अवतार नहीं दे सकते। तो हमारे आचार्य बताते हैं श्री रूप गोस्वामी कि भगवान के पास एक शक्ति है, शक्ति ऑफ अट्रैक्टिवनेस। ये शक्ति जो है वो ना नरसिंह भगवान में है, ना राम भगवान में है। और फिर वो प्रमाण देते हैं शास्त्र में से। तो विष्णु पुराण को कोट करते हैं, उसमें बताते हैं कि किस तरीके से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, उनका वध किसने किया? वारादेव नरसिंहदेव। क्या उनको मोक्ष मिला? दूसरे उन्होंने जब दूसरा अवतार लिया तो कौन से रूप में आए वो? रावण, कुंभकर्ण, राइट? तो उनका ऑपुलेंस बढ़ गया क्योंकि भगवान ने उनका वध किया। अब विष्णु पुराण में ये मेंशन है कि क्योंकि नरसिंह भगवान के साथ जब युद्ध कर रहे थे हिरण्यकशिपु, तब हिरण्यकशिपु उनको एक साधारण मनुष्य की तरह देख रहे थे, उनको भगवान के सम्मान नहीं देख रहे थे। वो देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि नरसिंहदेव में उतनी शक्ति नहीं है। फिर बाद में जब वो कुंभकर्ण और रावण के स्वरूप में आए तब राम भगवान को भी उन्होंने ऐसा साधारण मनुष्य देखा। वो भगवान के स्वरूप में उनको देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि भगवान राम में भी ये शक्ति नहीं था। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए तो शिशुपाल और दंतवक्र जो है वो भगवान के बारे में 24 घंटा सोचते थे। शिशुपाल का उदाहरण दिया है उन्होंने कि 24 घंटे भगवान का नाम जप करते थे वो, और भगवान के स्वरूप के बारे में सोचते थे, और उनको पता था कि ये भगवान कृष्ण भगवान है करके। तो उनको क्या मिलता है तुम्हें? जब कृष्ण भगवान वध करते तब मोक्ष मिल जाता है उनको। और मोक्ष मतलब अलग अलग तरीके का मोक्ष भी होता है। सयुज मुक्ति होती है, फिर भगवान के धाम में उनको भेज देते हैं वो लोग, जैसे पूतना को भेजा उन्होंने, राइट? तो इस प्रकार से भगवान असुर का वध करते हैं और उनको मोक्ष देते हैं। ये सिर्फ कृष्ण में है, बाकी कोई। दूसरा एक उदाहरण आचार्य ये देते हैं कि राम भगवान जो है वो जब जंगल में चले गए थे तब जितने भी पेड़ पौधे थे अयोध्या में वो सब उनके वीरा में रोते थे। तो आचार्यगण बताते हैं कि ये राम भगवान जब गए जंगल में तब ये लोग रोते थे, लेकिन भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो हर रोज उनको देख के रोते थे क्योंकि उनका भाव विभोर में आके वो अश्रु बहाते रहते थे। तो भगवान कृष्ण के साथ ये डेली अफेयर था, लेकिन राम भगवान के साथ कभी कभी ऐसा होता था। तो ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं। तो ये सारा चीज हमको जानने मिलता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। इसके लिए श्रवण बहुत जरूरी है और हमको एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। तो आप जब चैंटिंग करते हो तो साथ साथ में श्रवणम कीजिए प्रभुपाद के बुक्स का। और जरूरी नहीं है कि आपको एक चैप्टर पूरा खत्म करना है, आप एक पेज पढ़िए हर रोज का। अगर आपको देखिए, अगर आप सबके पास अपना अपना अलग अलग समय है, किसी के पास 15 मिनट है शायद,
दिन का, किसी के पास आधा घंटा है, किसी के पास 1 घंटा है। और अगर ट्रैवलिंग में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हमेशा, अभी तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ, आप मोबाइल पे सब पढ़ सकते हो। तो अगर आप पढ़ना चालू कर देंगे ना तो आपको ये सब रहस्य समझ में आ जाएगी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। सो ऐसे अनगिनत तत्व है भगवान के बारे में, अनगिनत रहस्य है जो हम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें इतना अमृत भरा हुआ है कि ये करेंगे तो और कुछ दूसरा कुछ आपको उसके लिए कोई समय ही नहीं मिलेगा। लेकिन हर रोज आप थोड़ा सा 15 मिनट आधा घंटा निकालिए, पढ़िए, सुनिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो ज्ञान के द्वारा आपका भक्ति जो है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक जगह पे क्लियरली बोल दिया उनके परपट में कि जब तक श्रवणम नहीं होता ठीक से, तब तक दूसरे 8 अंग है भक्ति के, वो ठीक से नहीं होंगे हमारे। तो ये बहुत जरूरी है। जब तक श्रवणम स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक हमारा ना कीर्तनम ठीक से होगा, ना स्मरणम होगा, ना अर्च विग्रह होगा। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे अभी मैंने पूछा कि ये कौन से डीटीज है, ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहे थे। राधा गोविंद निगड़ी। निगड़ी, राइट। मुझे लग रहा था कि मैंने उनको कितनी बार दर्शन किए, मैंने नाम याद नहीं आ रहा था। अब प्रभु जी ने बोला निगड़ी के, तो किसी ने बोला कि राधा श्याम सुंदर है, तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये श्याम सुंदर है ही नहीं, हो ही नहीं सकते वृंदावन के। तो आप जब भगवान के पास जाते हो, उनको विग्रह जो है उनको ठीक से देखिए, उनके पास थोड़ा समय के स्पेंड कीजिए, उनके स्वरूप को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये स्वरूप जो है वो भी भगवान का सनातन स्वरूप है। एक परपट में शिला प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में उसमें लिखते हैं कि ये जितने भी हम विग्रह देखते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में, वो सनातन रूप से हमारे गोलोक वृंदावन, गोलोक में है, वैकुंठ में है, उनका सब सनातन रूप से है। क्योंकि भगवान का विग्रह जो है वो कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भगवान के, पोस्टमैन नहीं है, पोस्टमैन नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तो ऐसा भगवान का जो स्वरूप है वो सनातन है, वो सिर्फ प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। तो जैसे जब हम ये विग्रह को इंस्टॉल करते हैं, वो समय पे भगवान प्रकट हो जाते हैं हमारी आंखों के सामने। लेकिन उसके पहले क्या भगवान नहीं थे? नहीं, वो स्वरूप है लेकिन अप्रकट है। लेकिन जब भगवान इस इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं या फिर भगवान का आह्वान करते हैं, वो समय पे भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसके लिए आदान प्रदान भी होता है ना। अभी प्रभु जी कल बता रहे थे कि किस तरीके से जगन्नाथ जी उनके सपने में आए थे और उनको बोला कि ये जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा जी का स्थापना करना है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं आदान प्रदान। ये भगवान जगन्नाथ जो है वो कुछ लकड़ा नहीं है, साक्षात भगवान लकड़े के रूप में आए, दारू ब्रह्म। तो इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी ने 5 अंग बताए जो सबसे श्रेष्ठ है भक्ति में। वो क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास। ये 5 चीज प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में दे दी है। अगर हम देखेंगे तो ये 5 चीज बहुत एकदम एक्सीलेंट फॉर्म में दिया है प्रभुपाद जी ने हमको। साधु संग तो कोई बोल ही नहीं सकता है। पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन ने जो कम्युनिटी क्रिएट की है, तो पूरे वर्ल्ड से जितने भी भक्त आते हैं एक दूसरे का संग लेते हैं। फिर नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन में तो पूरा वर्ल्ड जानते हैं कि इस्कॉन का कीर्तन जो होता है अल्टीमेट होता है। फिर जो भागवत श्रवण है, तो एवरी मॉर्निंग में भागवतम का श्रवण होता है हमारे मंदिरों में, राइट। उसके बाद विग्रह की पूजा करना। मुझे आप बताइए ऐसे विग्रह हमारे इस्कॉन में है जो किधर भी नहीं है, आपने देखे भी नहीं होंगे। और आप एक चीज नोटिस करेंगे, वृंदावन में भी, वृंदावन में जितने ब्रजवासी है वो उनकी दुकानों में सब पिक्चर्स लगाते, फोटोज लगाते हैं। किसके लगाते हैं? वो हमारे सब इस्कॉन के विग्रह के लगाते हैं। इतने ब्यूटीफुल विग्रह है हमारे मंदिर में। और राधा श्याम सुंदर तो ऐसा बोलते हैं कि साक्षात राधा श्याम सुंदर वृंदावन के ही है, उधर अपने अवतारी रूप में है। ऐसे राधा रानी तो एकदम परफेक्ट, मतलब जो राधा रानी रियल राधा रानी ऐसा बोलते हैं कि उस तरीके का स्वरूप है उनका। तो विग्रह सेवा और धामवास या तुलसी की पूजा। तो क्योंकि हम धामवास नहीं कर सकते, इसके लिए प्रभुपाद जी ने हमको ये भी कहा है कि हमारा जो टेम्पल है वो लोकल वैकुंठ है। लोकल मंदिर जो है हमारा वो लोकल वैकुंठ है, वो लोकल धाम है, राइट। देखिए ये जो लोकल वैकुंठ है वो भी सनातन है। जैसे भगवान की लीला सनातन रूप में होती है ना इस जगत में, एक ब्रह्मांड से, जैसे एक उन्होंने किसी पूतना का वध कर दिया एक ब्रह्मांड में,
तो उसके बाद इमीडिएटली दूसरे ब्रह्मांड में वो लीला वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर तीसरे ब्रह्मांड में और वहीं से। तो एक तरीके से हर भगवान की लीला उस समय की सनातन है, क्योंकि अनगिनत ब्रह्मांड है, राइट। उसी प्रकार से प्रभुपाद, अभी देखिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से कि ओ स्पिरिचुअल मास्टर, यू आर माय इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर, बर्थ आफ्टर बर्थ। तो ये बहुत गहरी बात है, इतनी इजी नहीं है समझने। उसका क्या मतलब है, प्रभुपाद जी को एक बार उन्होंने, उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, डू आचार्यस गो बैक टू गॉडहेड? प्रभुपाद सेड, आचार्यस नेवर गो बैक टू गॉडहेड, they keep coming back in this material world and they keep going from one universe to another universe to deliver all the conditions, so they never go back to Godhead. फिर उनको शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद क्या ऐसा है कि आचार्य जो है वो साइमल्टेनियसली गोलोक में भी है और यहाँ पे भी है? प्रभुपाद सेड, यस, यू हैव अंडरस्टूड समथिंग लाइक दैट। सो उसका क्या मतलब है कि प्रभुपाद को एक जगह पे एक शिष्य ने उनको पूछा कि प्रभुपाद आपका नेक्स्ट बर्थ आप कहाँ पे लेना चाहोगे? प्रभुपाद जी ने बोला, मैं नरक में लेना चाहता हूँ लोगों का उद्धार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की। तो उसका क्या मतलब है कि आचार्य है वो कभी भी भगवान के धाम में नहीं होते हैं, वो नित्य स्वरूप से इसी ब्रह्मांड में सबका उद्धार करने के लिए घूमते हैं। तो जन्मे जन्मे प्रभु से का मतलब क्या है कि प्रभुपाद के जितने भी पार्षद है या उनके जितने भी अनुयायी है वो भी जन्म लेना चाहते हैं प्रभुपाद जी के साथ, राइट। तो एक तरीके से इटर्नल हो गया रिलेशनशिप। सो ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण ये हो सकता है कि जो हमारा भगवान के लीला में जो स्वरूप है, गौर लीला में, कृष्ण लीला में, उसमें असिस्टेंट्स हो सकते हैं। जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, तो उनके असिस्टेंट जो मंजरी है अगर वो हम है तो उस तरीके से इंटरनल हो जाता है रिलेशन सनातन रूप से। तो ये चीजें हमको तभी समझ में आएगी जब हमको ठीक से शास्त्र का ज्ञान होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे भक्तों को कि आप कृपया करके आप श्रवणम कीजिए अच्छी तरीके से प्रभुपाद जी के बुक्स का। और एक बार में नहीं समझता है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद ने बहुत आसान भाषा में दिया है, लेकिन हमको बार बार किसी भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा, उनको प्रश्न पूछने पड़ेंगे, डाउट्स आएंगे बहुत सारे, उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये आपको खुद करना है, ये स्वयं आपको करना है। उसे आपको धीरे धीरे करके भगवान का रहस्य जानने मिलेगा, तत्वों का, भगवान की कृपा मिलेगी उससे, शीला प्रभुपाद की कृपा मिलेगी आपको। तो शीला प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं हमेशा अपने बुक्स में मौजूद हूँ। अगर भक्त मेरा बुक पढ़ते हैं तो वो मुझे साक्षात मेरे बुक्स में देखेंगे। तो अगर ये आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको बुक्स पढ़ना है प्रभुपाद जी के। और इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने बहुत सारे उनके शिष्यों को भी प्रोत्साहित किया बुक लिखने के लिए। तो मतलब मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मैंने यही सोचा कि जो बाहर वाले हैं, हमारे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, उनको डाउट्स होती है हिंदू धर्म के बारे में, इसके लिए कभी कभी दूर रहते हैं, इतने अच्छे से उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने भी एक किताब लिखी है 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म, और उसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन है बहुत जल्द आने वाला है। उसका बुक का नाम है सनातन धर्म संचय भंजन। और ये बुक में मैंने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में दिया है कि जैसे बाहर वाले बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण क्यों सबसे श्रेष्ठ है, कृष्ण की लीला क्यों ऐसी है, सब रासलीला क्यों करते हैं दूसरों के साथ, फिर कर्म के बारे में है, फिर भागवतम जो है वो सबसे श्रेष्ठ शास्त्र क्यों है, फिर श्रुति स्मृति में क्या अंतर है, श्रुति स्मृति क्यों इक्वल है श्रुति के साथ। उसके बाद तो ऐसे ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चंस है। तो उसमें आपको बहुत सिस्टमैटिकली, लॉजिकली, सिंपल लैंग्वेज में रेफरेंसेस के साथ, शास्त्र प्रमाण के साथ मैंने कोट किया है। तो अगर कोई भक्त अगर उसको लेना चाहते हैं तो अभी आप प्रभु जी शायद अनाउंस करेंगे तो आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ एंड धन्यवाद देना चाहता हूँ हर भक्त को। थैंक यू सो मच कि आप आए अपना कीमती समय निकाल के और मुझे आपने सेवा का मौका दिया। ओके, हाँ सॉरी। सो क्वेश्चन आंसर है क्या किसी को? यस प्रभु जी। ओके, ऑनलाइन भी है और अच्छा। Yes, प्रभु जी, प्लीज गो अहेड। हाँ प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, आपने जो एक्चुअली थैंक यू फॉर द सेशन, काफी चीजें पता चली। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो आप कह रहे थे अप्रकट और प्रकट रूप से प्रभु लीला करते हैं,
कुछ हमको समझ में आती हैं, कुछ उनकी लीलाएं जो समझ में नहीं आती। तो ये जब दोनों मिक्स फॉर्म में हैं तो कैसे समझे फिर प्रभु को, क्योंकि क्या प्रकट है क्या अप्रकट है ये कैसे समझे? ओके, सी मैंने आपको इसके लिए शुरुआत में मैंने समझाया कि प्रकट को क्या हम किसको प्रकट बोलते हैं और किसको अप्रकट बोलते हैं। तो अभी जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कृष्ण भगवान के लीला में भाग लेते हैं, सपोज भौमो वृंदावन में अगर हम है और कृष्ण ने उनका अवतार दिया है, तो हम अगर हम में वो क्षमता है, क्वालिफिकेशन है, तो हम भौमो वृंदावन में जन्म लेते हैं, राइट। वो ब्रजवासी के रूप में हम जन्म लेते हैं भगवान के धाम में, तब भगवान की लीला को हम साक्षात देखते हैं अपनी आंखों से। जैसे असुर आए थे तो उन्होंने भी भगवान को देखा था। अब हालांकि उन्होंने भगवान के अलग रूप को देखा था, उन्होंने भगवान का असली रूप नहीं देखा, लेकिन उन्होंने एक तरीके से भगवान को देखा, राइट। तो जो भौमो वृंदावन में है वो साधका जो होते हैं उनको भगवान के बारे में पता होता है। जैसे कंस है या उनके अनुयायी है, तो सारे जो असुर है उनको पता है कि कृष्णा करके कोई है वृंदावन में और वो माया भी है, राइट। ऐसा सब उनको पता रहता है। तो एटलीस्ट हमको पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग भगवान को अपने आंखों से देख सकते हैं। जब भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे, तो जब रेसलिंग का मैच अरेंज हुआ था, तभी बहुत सारे अनगिनत मथुरा वासी थे वहां पे, तो उन्होंने सबने भगवान को, कृष्ण को देखा अपनी आंखों से, तो उसको बोलते प्रकट। अगर हम अपनी आंखों से भगवान को देख सकते हैं तो उसको बोलते प्रकट। साधका के लिए, सिर्फ साधका के लिए, क्योंकि नित्य सिद्ध होते हैं वो तो भगवान के प्रेम के स्तर पे ऑलरेडी होते हैं। तो अब जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं अपने प्रकट रूप में, तो फिर क्या होता है, भगवान एक तरीके से अदृश्य हो गए, अभी वहां पे वृंदावन में मौजूद नहीं है। लेकिन अदृश्य किसके लिए हुए? वो अदृश्य हमारे लिए हुए जो देख नहीं सकते उनको। लेकिन नित्य सिद्ध लीला में, अप्रकट लीला में ब्रजवासी है, क्योंकि वो भगवान के ऑलरेडी गोलोक धाम से आए हैं और भगवान का साक्षात प्रकट महसूस करते हैं, तो इसके लिए वो हमेशा भगवान को देख सकते हैं और वो हम नहीं देख सकते। जैसे कलयुग में भी ऐसा बताया गया है कि कलयुग में आप भगवान को नहीं देख सकते हो अपने भौतिक दृष्टि से। तो भगवान कलयुग में जो है अपने हृदय में वास करते हैं। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयांति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम मम। तो ऐसा नहीं बताया है कि हमको आंखों के सामने भगवान दिखेंगे, हमारे हृदय में प्रकट होते हैं कलयुग में। कलयुग में हमारे आंखों के सामने नहीं होते वो, कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते हैं। इसके लिए त्रियुग है, प्रहलाद महाराज ने बोले त्रियुग है। तो अब प्रश्न ये है कि जो ये जो चैतन्य महाप्रभु है और फिर जो अंत में हमारे कल के अवतार है, तो क्या वो भगवान नहीं है? तो चैतन्य महाप्रभु के पहले तो चैतन्य महाप्रभु एक बहुत क्षण अवतार है, बहुत रेयर अवतार है, वो क्षण भी अवतार है। मतलब वो अपने आप को भगवान नहीं बोलते, वो अपने आप को भक्त बोलते भगवान का, और भक्त के रूप में आए हैं, तो वो हम कंसिडर नहीं कर सकते उसको। और कल के अवतार जो है वो सत्यावेश अवतार है भगवान के। मतलब विष्णु, भगवान विष्णु तत्व बन के नहीं आते, विष्णु तत्व के फॉर्म में नहीं आते कलयुग में, शिव तत्व को एम्पावर करते हैं, सत्यावेश अवतार, राइट। उसी तरीके से परशुराम है, बुद्धा है, ये सब सत्यावेश अवतार है, ये भगवान विष्णु नहीं है। बाकी अवतार जो है वो विष्णु अवतार है, लेकिन बुद्ध अवतार, कल के अवतार, परशुराम अवतार, सत्यावेश अवतार। तो ये भी सब रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतमृत में एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम बोलते हैं कि प्रकट अप्रकट। अभी आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। I think there are two questions. किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। So, in the beginning, you talked about Krishna Dev. Krishna Dev was pursuing his previous life. Where the reactions he gave as Krishna, and then he went back to God. In that Shanti Parva, where he is lying on arrow, bed of arrows, and he is giving to Yudhishthira Maharaj. So there is one incident we hear from devotees that Draupadi comes and she starts laughing. You are giving so many upadesh, but when I was in trouble, you were just observing the whole scene, the assembly hall. And he says that I took the namak of Duryodhana, so that's why my mati was contaminated. Now by the mercy of Arjuna, it has become purified, and now it is able to speak pure knowledge. So this I wanted to understand. He is Bhishma, he is a Mahajan, and like you said, he is devotee of Krishna also. Yeah. And he is telling me दुर्योधन का नमक खाने की वजह से मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, ये कैसे समझ? सो अर्जुन का भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया, राइट, थोड़े समय के लिए।
जब कृष्णा उनको ज्ञान दे रहे थे गीता का, तो टेम्परली ही वाज bewildered. अर्जुन तो नित्य पार्षद है ना भगवान के, राइट? सो एज आई सेड अर्लियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पांडव जो है भगवान के नित्य सिद्ध है पार्षद। इसके लिए भागवतम में, भागवतम का ही वर्ष है ये। ट्रांसलेशन, मैं प्रभुपाद की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन में ही दिया है, दे ऑल वेंट बैक टू गॉडेड इन द सेल्फ सेम स्पिरिट बॉडी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शरीर बदला उसके बाद भगवान के धाम में गए, उसी शरीर में आए थे, उसी शरीर में भगवान के धाम में चले गए। अब देखिए, जहां तक देखिए अलग अलग पुराण जो है वो अलग अलग वर्णन करते हैं अलग अलग तरीके से। तो आचार्य कभी कभी बोलते हैं कि कल्प भेद है, ठीक है, कि महाभारत जो वर्णन कर रहा है शायद एक कल्प में होगा, और भगवत पुराण जो वर्णन कर रहा है वो दूसरे कोई कल्प में होगा। लेकिन इससे भी एक अच्छा उत्तर ये है कि हमारा जो श्रीमद् भागवतम है अमल पुराण है, द स्पॉटलेस टाइमलेस अथॉरिटी श्रीमद् भागवत। तो भागवतम जो है उसका जो स्टार्ट, एंड और मिडल वो केवल भगवान की भक्ति के बारे में। तो भागवतम हमको जिस तरीके से लेके जाता है, दृश्य देता है, वो भक्ति भाव के दृश्य से दिखाता है हमको। और महाभारत जो है वो कर्म कांड के दृश्य से दिखाता है चीजों को। इसके लिए आप देखेंगे कि पांडवास, भागवतम में ऐसा बोलते हैं कि पांडवास वेंट बैक टू गॉडेड, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि पांडवास नरक में गए थे एक एक करके, राइट? या फिर नरक में मतलब युधिष्ठिर महाराज गए थे, एंड सब स्वर्ग में गए थे, सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया सबने, और एक एक करके सब गिर रहे थे, राइट? हिमालय से ऐसा कुछ तो पूरा अलग वर्णन है। लेकिन आपको ये समझना है कि महाभारत में कर्मकांड को ज्यादा एम्फसाइज किया है उसी प्रकार से, क्योंकि देखिए सत्व रजो तमोगुण में है वो उस प्रकार के शास्त्र लिखे हैं। तो रजोगुण तमोगुण में शास्त्र जो है उसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, लेकिन भागवत पुराण जो है हमारे लिए अमल पुराण है, स्पॉटलेस अथॉरिटी है, और भागवत पुराण जो बताता है वो हम स्वीकार करते हैं एज द अल्टीमेट अथॉरिटी। क्योंकि भागवत पुराण में आपको जो मिलता है दृश्य वो सभी वेदों का सार है, सभी शास्त्रों का सार मिलेगा। द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स इज देयर इन द श्रीमद् भागवत, ठीक है? तो अगर हम ये सोचते हैं कि अगर ये लोग को स्वर्ग की प्राप्ति हुई तो फिर भगवान के धाम में कौन गया, तो उसको रिकंसाइल कैसे करेंगे, राइट? तो हम इस तरीके से उसको समझते हैं। And Prabhupada says कि जीवात्मा को स्टेप बाय स्टेप टू फॉलो कर, क्योंकि वो स्वर्ग एंड ऑल द प्लैनेट्स ही विल विजिट, अगर उसका मन अटक गया कहीं पे, so he will stay there only for his next life, and then when he gets purified he will go ahead, and then gradually Krishna will take him to Golokunda. So is it correct? अगर प्रभुपाद जी ने बोला है तो करेक्ट ही होगा उसके ऊपर तो नो कमेंट्री। लेकिन प्रभुपाद जी ने, देखे पहले तो ये समझना है हमको जरूरी कि प्रभुपाद जी ने अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे बोली है। प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि जस्ट कैच होल्ड ऑफ माय धोती एंड मैं आपको पिछले भगवान के जो बैक डोर से मैं आपको एंट्रेंस दिला दूंगा, राइट? भक्तों ने जब उनको शिष्य उनको पूछ रहे थे कि प्रभुपाद भगवान के धाम में जाने के लिए कितना परसेंटेज शुद्धिकरण चाहिए, प्रभुपाद ने बोला 100%। तो सब भक्त जो है एकदम परेशान हो गए और एकदम डिसअपॉइंट हो गए, उनको लगने लगा कि यार हमारा चांस ही नहीं है। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्रभुपाद कुछ कंसेशन दे दीजिए, तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है 90%। बोला 90% भी ज्यादा लग रहा है, तो फिर धीरे धीरे करके उन्होंने बार्गेन करके 75% पे डील को फाइनल किया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ऐसा बोला है। प्रभुपाद ने दूसरी जगह पे ऐसा बोला है कि अगर आपको रसगुल्ला भी खाना होगा, सिर्फ एक ही डिजायर बचा है रसगुल्ला खाने का, तो उसी के लिए आपको वापस आना पड़ेगा प्रभुपाद जी ने बहुत लेटर्स में ऐसा लिखा है कि जस्ट गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा एंड आई मेक श्योर दैट इन दिस वेरी लाइफ टाइम यू विल ऑल गो बैक टू गॉडेड। तो वो टाइम पे प्रभुपाद ने ऐसा नहीं लिखा है कि आपका हर एक हिसाब किताब में देखने वाला हो, अगर 1% 0.1% भी बचता है तो आपको आना पड़ेगा। ऐसा कोई डिटेल में प्रभुपाद ने ऐसा नहीं लिखा है किधर। सो उसका मतलब ये है कि 75% जो है जनरल, मतलब एटलीस्ट आपका निष्ठा के लेवल पे होना चाहिए भक्ति, स्टेडीनेस नहीं होगा। अगर आप अनर्थ निवृत्ति में ही जूझ रहे हैं तो क्या कोई चांस है जाने का वापस? नहीं, इट इज कॉमन सेंस। सो निष्ठा जो है वो हमारे हाथ में है, आगे के स्टेजेस हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान हमको प्रदान करते हैं। रुचि आपके निष्ठा से आपको रुचि नहीं मिलने वाली है। जब भगवान को लगेगा इसको मैं, क्योंकि निष्ठा के बाद भी आपको घमंड आ सकता है, तो भगवान बोलेंगे कि इसको नहीं लूंगा मैं रुचि, तो आपको बहुत समय तक
रुकाएंगे वो। लेकिन अगर भगवान देखते हैं कि बहुत नम्र स्वभाव है इनका और सब भक्तों का अच्छा से सेवा कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, तो भगवान रुचि आपको इमीडिएट प्रदान कर सकते हैं। ऐसा भी होता है निष्ठा के स्तर पे, अगर आपका मृत्यु हो गया उस समय पे, लेकिन आपकी भावना बहुत अच्छी है, तो निष्ठा से सीधा प्रेमा तक आपको एक ही क्षण में लेके जाए। सब कुछ पॉसिबल है भगवान के। तो प्रभुपाद जहाँ पे अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने ये किया और यही उसका आंसर यही है। भगवान के हाथ में कोई डायनामिक्स मैथमेटिक्स कुछ नहीं है यहाँ पे। भगवान को अगर इच्छा हुई वो आपको कभी भी बुला सकते थे आप, राइट? तो ये बात है। हाँ, ओके। सो सी, जगाई मदाई जो है, जिस प्रकार से कृष्ण की लीला में सारे भक्तों का दो दो स्वरूप है, राइट? जैसे हम बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। उस प्रकार से गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी का भाव, राइट? उसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद, राइट? तो ये सब काउंटर पार्ट है गौर लीला में, व्रत लीला में। गोलोक में श्वेतदीप करके है जो सराउंड करता है मथुरा और द्वारका को, ओके? तो वो श्वेतदीप जो है वो नवदीप है गोलोक में। चैतन्य महाप्रभु की लीला होती है वहां पे, और वहां पे उनके जो पार्षद है वो साधक फॉर्म में है, सिद्ध फॉर्म में नहीं है, बट वो भी इटर्नल है, नित्य है भगवान के। तो ये जो भी जितने भी है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब सनातन रूप से गौर लीला में गोलोक में मौजूद है। सो अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी है ये दोनों, मतलब करस्पॉन्ड करती है एक दूसरे को। वो करस्पॉन्डेंस कैसे है? क्योंकि जो गौर लीला में जो भक्त है वो ऐसा भाव प्रकट करते हैं चैतन्य महाप्रभु के तरफ जो ललिता से मिलता जुलता है, जो राधा रानी से मिलता जुलता है, जो श्रीरामा सखा से मिलता जुलता है, जो सुबल सखा से मिलता जुलता है। इसके लिए कवि कर्णपुर जो है गौर गणोदेश दीपिका में बताते हैं कि ये जो है वो ये है कृष्ण लीला में। आप समझ गए? इटर्नली दोनों फॉर्म्स मौजूद है, एक गौर लीला में और एक कृष्ण लीला में, क्योंकि गौर लीला इटर्नल है, कृष्ण लीला इटर्नल है, पैरेलल है दोनों। तो दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। और जैसे मैं आपको कहा कि एक सोल जो है वो अनगिनत एक्सपांशन कर सकते हैं भगवान की कृपा से, उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ पॉसिबल है। तो हम वो उनको अपने आप को एक्सपांड भी कर सकते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, ठीक है? तो कल सेम प्रश्न पूछा था मुझे क्योंकि सबको ऐसा देख के लगता है कि अरे प्रभु इतना गृहस्थ होने के बाद इतना ज्ञान कहाँ से है। तो मैंने अब बताया था कि मुझे बुक पढ़ने का पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था, और स्पेशली स्पिरिचुअल बुक्स था। तो जब मैं स्पिरिचुअल बुक्स जैसे जैसे पढ़ते गया तो मेरा टेस्ट और ज्यादा मुझे अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे करके फिर बाद में जो नेक्टर हमारे आचार्यों ने दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने, रूप गोस्वामी ने और बहुत सारे आचार्य ने, तो वो ऐसा हो गया कि वो छोड़ ही नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं घर पे हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो कभी कभी घर पे हूँ मैं, तो मैं घर पे पढ़ता हूँ। लेकिन अगर ट्रैवलिंग करता हूँ तो ट्रैवलिंग में मेरे फोन में सारे बुक्स मेरे पास फोन में है, तो मैं आने जाने को पूरा मैं फोन पे पढ़ लेता हूँ। उस तरीके से मैं अपना 1-1.5 घंटा दिन में निकाल लेता हूँ पढ़ने के लिए, और उसी के वजह से जो कॉन्शियसनेस जो है हमारा, उसमें बहुत सारा चेंज आता है, देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। सेम एक्टिविटी है लेकिन एक हम लोग को बहुत अच्छा उसमें डेप्थ मिल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जैसे अभी देखिए, मैं लेक्चर्स हर रोज सुनता हूँ और मैं बुक्स हर रोज पढ़ता हूँ। तो लेक्चर भी मैं कब सुनता हूँ? जब मैं स्नान कर रहा होता हूँ बाथरूम में और मैं प्रसाद लेता होता हूँ, तभी मैं लेक्चर सुनता हूँ। तो मेरा लेक्चर भी 45 मिनट ऐसे ही हो जाता है, 1 घंटा जितना मेरा ऐसे ही लेक्चर्स एवरीडे हो जाता है, और आने जाने ट्रैवलिंग के समय पे मैं बुक्स पढ़ लेता हूँ। तो उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। आपको पढ़ने के लिए टेस्ट होना चाहिए, आपको डिजायर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। और स्पेशली एक चैलेंज, बड़ा चैलेंज प्रभुपाद के बुक्स का पढ़ने का ये है कि आपको कभी लग सकता है कि बहुत रिपीटेटिव है
और कॉर्पस उसके लंबे हैं और प्लस फिलोसॉफी ज्यादा है। आसान भाषा है, लेकिन कभी कभी फिलोसॉफी ज्यादा हो सकती है, तो उस समय पे आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको कंटिन्यू करते रहने का। आपको समझ में आया नहीं आया, आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप किसी से पूछ के क्लैरिफाई कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है वो। समझ में आ गया तो ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, देखिए भगवान आपको हर चीज हर समय रिवील नहीं करेंगे। जब सही समय आएगा तो बहुत सारी चीजें रिवील होगी अपने आप। तो जैसे काफी डिवोटीज बोलते हैं कि इतना ज्यादा प्रश्न मत पूछिए, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डिवोटीज बोलते हैं, जो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा है कि अगर नेक्टर उसी समय मिलता है तो उसी समय ले लो, ठीक है, और नहीं मिलता तो ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसके पीछे भाग जाऊंगा और उसके पीछे पड़ जाऊंगा। जब भगवान चाहेंगे तब, मुझे इतना भी पता है कि जब भगवान चाहेंगे, लेकिन वो समय पे अगर नेक्टर मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ू। वो एक लालसा भी होनी चाहिए, राइट, नेक्टर पाने की। तो उसी प्रकार से अगर आपको वो समय पे कोई भक्त मिल जाते हैं जो आपको गाइड करते हैं शास्त्र में, आपको क्लैरिफाई करते हैं, तो पकड़ लीजिए ऐसे भक्तों को लंबे समय तक, और उनके पास जाके सब कुछ क्लैरिफाई करिए। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो बर्तन धो खासिए जाके किचन में। तो हम भी जब हमारा भक्ति टूर हुआ था तो राधा रानी के किचन में, क्योंकि किचन जो होता है वो राधा रानी का इंचार्ज है, राइट, तो हम लोग काफी बर्तन घासते थे। तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बर्तन घासने से मिल जाते थे। मर्दिन मर्जना दो, अगर मंदिर को आप साफ करोगे अपना हृदय भी उससे साफ होता है। इसके लिए हाँ, अभी गुंडीचा मार्जन का भी एक अलग रहस्य है, तो कब समय होगा तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें भी गुंडीचा मार्जन में भी बाह्यरंग और अंतरंग कारण है। तो जितना हम साफ सफाई करते हैं, मिनियल सेवा करते हैं, उससे भी हमारा शुद्धिकरण होता है। और भगवान अरेंज करेंगे कि किसी डिवोटी के द्वारा, जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल भागवतम क्लास में अगर देखिए, अभी आपने ये डिवोटी ने प्रश्न किया, ये प्रश्न आपके मन में होगा लेकिन आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका अपने आप क्लैरिफाई हो गया। तो उसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन भी अपने आप क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो ये अलग अलग टाइप के रियलाइजेशन होते हैं। या तो आप खुद मेहनत करके पूछो, या अगर आपको समय नहीं है तो आप जो देखिए, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो गुरु ने सेवा दिया है उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाना है। ओके, और तो श्रीला प्रभुपाद जी ने ये बोला है कि आउट ऑफ ऑल द सर्विसेज चैंटिंग ऑफ 16 राउंड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे लिए 16 माला जपना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेशली दीक्षा, जो उन्होंने दीक्षा ली है, क्योंकि उन्होंने भगवान को वचन दिया है, सबको वचन दिया है, तो 16 माला जपना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब भक्तिविनोद ठाकुर ने यह बताया कि हेल्थ, साधना और सेवा, सबसे पहले प्रायोरिटी देना है आपको हेल्थ को। हम नित्य सिद्ध नहीं है, हम कोशिश भी मत करना इमिटेट करने का। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा ना, हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ना पढ़ने में, ना जप करने में, ना सुनने में। तो पहले हेल्थ हमारा प्रायोरिटी करना है हमको। उसके बाद साधना आता है, उसको सेकंड प्रायोरिटी देना है, और साधना, और उसके बाद समय मिला तो सेवा करना जाके। अगर आप सेवा करोगे साधना के बिना तो कुछ ही समय तक कर पाओगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपका जो रुचि है वो साधना से ही आता है। जो आपका जो पेट्रोल है, फ्यूल है, वो साधना है आपका, समझे। सो इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला हेल्थ, साधना, सेवा। और इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने ये भी बोला कि हमारे पूरा मूवमेंट जो है वो तीन उसका एसेंस है, तीन एसेंस है उसका, नाम, रुचि, जीव दया एंड वैष्णव सेवा। अगर हम ये तीन नहीं करते हैं तो इनकम्प्लीट है प्रोसेस। जीव दया भी करना है हमको, वो भावना हमें रखनी है। अगर नहीं भी कर पा रहे तो वो भावना रखनी है कि जीव का भी उद्धार होना चाहिए। हमको आशीष करना है किसी को, अगर खुद नहीं कर सकते तो उससे हमको नाम में रुचि आएगी, और वैष्णव सेवा करने से ही नाम में रुचि आएगी हमको। और कलयुग में गौर निताई, गौर निताई, गौर निताई, गौर निताई एवं केवल कलौ नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति अग्नि। गौर निताई का आश्रय ले बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीसी में बताते हैं कि जो लोग चैतन्य महाप्रभु को याद नहीं करते तो आसान कार्य भी मुश्किल हो जाते हैं, और जो लोग चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं तो मुश्किल कार्य भी आसान हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को पूजे बिना आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। पहले के युग जब चैतन्य महाप्रभु नहीं थे तो बहुत लोगों को गोपी भाव मिला था, लेकिन बहुत सारे जन को तक उनको रुकना पड़ा, और फिर भी चैतन्य महाप्रभु जिस तरीके से जो भाव प्रदान करते हैं उस तरीके का भाव नहीं मिला था उनको।
तो चैतन्य महाप्रभु जो है हमारे कलयुग के अवतार है। एंड प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ये बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का सिर्फ अगर हम आशय ले लेंगे, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को, राधा कृष्ण को भी भूल जाइए आप, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को आप स्मरण कीजिए, सेवा कीजिए, पूरी तरीके से उनको डेडिकेट कीजिए, राधा रानी का जो भाव है आपके हृदय में ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। और प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ये भी बताते हैं कि जितने डिग्री तक, जितने परसेंटेज तक हम महाप्रभु के लिए अफेक्शन होगा, उतना ही अफेक्शन हमको राधा एंड कृष्ण में आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको राधा रानी के लिए 100% आ गया, चैतन्य महाप्रभु के लिए 50% आया, नॉट पॉसिबल। उसका मतलब है कि आपको चैतन्य महाप्रभु पे विश्वास नहीं है कि वो भी राधा रानी का भाव लेके आए कृष्णा। सो चैतन्य महाप्रभु का अगर आपने पकड़ के रख लिया तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपका प्रश्न क्या था? सॉरी मैं भूल गया। आप कैसे मैनेज करते हो? हाँ ओके, कहाँ से कहाँ चला गया। तो एनीवेज पॉइंट ये है कि ये शास्त्र देखिए, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको मजा आया कि नहीं उसमें? बस तो यही है, ये मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं तो सिर्फ पोस्टमैन हूँ, ठीक है। तो आपको क्यों पोस्टमैन के द्वारा जाना है? डायरेक्टली पकड़ लीजिए नेक्टर को। कमीशन, यहाँ पे मैं कमीशन एजेंट नहीं हूँ, राइट? तो आप डायरेक्टली पकड़ लीजिए नेक्टर को, लेकिन भक्तों के द्वारा ही होगा सब, जो भी होता है भक्तों की कृपा और उनके द्वारा होता है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ना मुझे बहुत शुरू से चाइल्डहुड पढ़ना है योजना में, सब हाउस स्टडीज हो गए, जब पढ़ने एग्जाम देने लगे, डेवलप कैसे करेंगे कभी तो हम कर रहे हैं, समहाउ हम वीडियो करने के लिए कर रहे हैं, नहीं आ पा रही, हम उसे कुछ देख ही रहे हैं। यस सो सी ऐसा है कि आपको सुनना अच्छा लगता है ना? क्या सुनना अच्छा लगता है आपको? लेक्चर से हम, अच्छा, तो लेक्चर में आपको फिलोसॉफी ज्यादा पसंद है या लीला पसंद है ज्यादा? कंटिन्यू कोर्स सुन सकते हो, सुन सकते हैं, पढ़ने की क्या हो रहा है तो ओके, तो सी ऐसा है कि लोगों को जब इंटरेस्टिंग चीजें देते हैं ना, तब वो पढ़ सकते हैं। आप एक बार ट्राई करना, अगर ये मैं सेम पॉइंट जो मैंने अभी क्लास में बोला ना, मैं अगर आपको धड़ाधड़ करके दे दूंगा, आप इमीडिएटली पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि इंटरेस्टिंग है बहुत। लेकिन जब जहाँ पे फिलोसॉफी आती है तो वहां पे बोर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। एक बार देखिए, एक बार समझना नहीं आता है ना चीजें, तो लिंक टूटने लगता है और फिर नींद अपने आप आती है, राइट? सो इसके लिए लाइक अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो डिवोटीज कभी बोलते हैं कि जब कर लीजिए या फिर पुस्तक पढ़ लीजिए, तो अपने आप नींद आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब करने के समय पे हमारा जो मन है वो भगवान के बारे में सोचता ही नहीं है, वो सब दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा सोचेगा, भगवान का कम सोचेगा। इसके वजह से हम लोग धीरे धीरे करके सो जाते हैं। सेम विथ रीडिंग ऑल्सो। तो पहले तो अगर आपको लीला में टेस्ट चाहिए, आप ऐसा स्टार्ट कीजिए, जैसे कृष्णा बुक परफेक्ट है शायद, उसमें फिलोसॉफी और लीला दोनों का ब्लेंड है। तो कृष्णा बुक अगर आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ना, आपको उसमें टेस्ट आने लगेगा। सी आपका एक हैबिट हो जाएगा। अगर आप कृष्णा बुक पढ़ लिया आपने, फिर आपको बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा यार मजा आ गया, तो अभी मैं दूसरी बुक ट्राई करती हूँ। तो आप दूसरा लीला का बुक पढ़िए, तो गौर लीला के बारे में पढ़िए आप, चैतन्य चरितामृत, राइट? तो अगर आप वो उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे एटलीस्ट टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा पढ़ने के लिए। फिर बाद में जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है वो आप धीरे धीरे करके बाद में पढ़ सकते हो, जब आपको ये टेस्ट डेवलप होता है हैबिट के हिसाब से, ठीक है? वो आप कोशिश कर सकते हो। ओके, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की लॉन्च ओके।